As you are aware, on 14 July 2024, Kalangut police station received a phone call from one Peter Mesquita informing that his relative is seen in a pool of blood at his house in Oda called Chandoli. Immediately, PI Kalangut with staff proceeded at the spot and observed that Mr. Arnaldo Joseph Soares, aged 68 years old, who was later identified as a Canadian national, he was found in a pool of blood. Later on, forensic team were called to the site and we had registered a case of murder under section 332 B 3096 103 of Bharatiya Nyaya Sanhita. Looking at the sensitivity of the case, special teams from Porvorim subdivision were formed. All the three PIs of Porvorim subdivision were roped in with their teams to work out this case as soon as possible. In this, we achieved major success when we arrested the main accused, who is identified as one Arvind Raju Pawar, also known as Parshu. He is son of Raju Pawar. He is 20 years old, resident of Oda Kandolin, Bardes. We have arrested him from Karnataka, from Jeratagi village in Kalaburgi. As per the initial investigation, we reached the conclusion that the primary motive behind the crime was robbery, but we are also not ruling out that there could be other angles involved also. Today he was produced before the court and court has remanded him to one-day police custody and interrogations on all these aspects are going on with him. I must appreciate that this case was worked out because of very effective supervision by SDPO Porvorim Shri Vishwesh Karpe, led by Police Inspector Kalangut Shri Paresh Naik, PI Porvorim Shri Rahul Naik, PI Saligaon Somnath Majid. They were assisted by Sub Inspector Shri Paresh Naik, Akshay Parsekar, Kiran Naik, Prajit Mandrekar, ASI Subhash Malvankar, Head Constable Vidyanam Amonkar, Police Constable Vijay Naik and Police Constable Raj Para, among others. So if you have any questions, we would be willing to answer them. सर ऊपर से नीचे जाने का इरादा क्या है? देखिए, अभी हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमने उसको पुलिस कस्टडी हमें मिली है, तो इन सारी चीज़ों पे हम उससे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि जो एक्यूज्ड है वो हमारे विक्टिम को पहले से जानता था। इसने इनिशियल इंटेरोगेशन में ये बताया है, उसने बताया है कि वो कुछ 2-3 साल पहले इनके घर पे घास काटने का काम करता था और भी कुछ छोटे मोटे लेबर के काम के लिए इनको ये बुलाते थे। इसलिए ही वॉज वेरी अवेयर ऑफ दी होल जोग्राफी ऑफ द प्लेस एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द हाउस. He knew where the victim used to sleep. He was aware where his bed was, at what time he used to sleep. And इन सब चीज़ों पे उसे तफ्तीश में इंटेरोगेशन किया जा रहा है और हम कोर्ट से और भी इसका पुलिस कस्टडी मांगेंगे। लेकिन अभी इनिशियल इसमें ये निकल के आया है जो इम्पोर्टेंट है कि ही न्यू दी विक्टिम। सर, गाड़ी का जो इस्तेमाल हुआ था, गाड़ी जाके वहाँ पे अबेंडन रखी थी, वो गाड़ी का इस्तेमाल क्यों हुआ था वहाँ पे जाके? बाद में वो कहाँ गया? देखिए, अभी इनिशियली जो बताया है उसने हमारी इंटेरोगेशन में वो ये बताया कि ही हैड यूज्ड द व्हीकल टू एस्केप फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम. नाउ एग्जैक्टली all these statements which he has made, he will be cross questioned on them and we have collected lot of technical evidence, तो हम उसको इसके वर्जन के साथ मैच करेंगे. कुछ सपोर्टर्स थे उसके या अकेला था ये सर?
अभी तक किसी का मेन रोल ही निकल के आया है, लेकिन हमने और लोगों को भी क्वेश्चनिंग के लिए बुला रखा है। उनके रोल को हम इसके अंदर गंभीरता से इसके अंदर प्रूव कर रहे हैं। ये पैसों के लिए किया? पैसा भी एक रीज़न था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते अभी स्टेज पे कि ये सिर्फ पैसे के लिए किया गया। इसको हम सारे एंगल से इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। सर जो मर्डर हुआ है उसके पीछे जो मारने का क्या है सर, वेपन्स का यूज़ किया था, तो इंजरीज हेड इंजरीज हुई थी। इसके अंदर ये जो क्या वन शार्प वेपन भी आर जो इनिशियली, क्योंकि इसका भी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है, बट जो फोरेंसिक्स ने देख के बताया है उसने बताया कि सम फॉर्म ऑफ शार्प वेपन वाज यूज्ड, एंड सो वी आर लुकिंग फॉर दैट शार्प वेपन। एंड इसकी इंटरोगेशन में हमें बताया, इससे पूछा जाएगा कि वो उसने कहाँ पे डिस्पोज ऑफ किया है उसके ऊपर। ऑलरेडी लेके आया था वो वेपन, या ऑलरेडी उसके जो घर पे था विक्टिम के वो यूज़ किया था? अभी ये चीज़ें बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको कहा इन्वेस्टिगेशन चालू है। आज इन्वेस्टिगेशन का 5वां ही दिन है, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें इस समय डिस्क्लोज करना आगे केस को इफेक्ट कर सकती है नेगेटिवली, इसलिए मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पोस्टमार्टम हो रहा है इसके ऊपर? नहीं, अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, सिंस ही वॉज अ कैनेडियन नेशनल। वी आर वेटिंग फॉर एन NOC फ्रॉम द कैनेडियन एम्बेसी, एंड एज सुन एज दैट NOC वी रिसीव वी विल बी प्रोसीडिंग विद द पोस्टमार्टम। नहीं, क्योंकि आप देखें कि वो एक तरीके से ही हैज एंटर्ड द होम, एंड सर्टन थिंग्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द सीन ऑफ द क्राइम which suggests that it may have been premeditated, but as I said, it is still early in the investigation to say anything with certainty.